it's a boy or a girl. The first identification of an individual is on the basis of the gender. Wherever we go in the society, we're stamped with the identity of being called a male or a female, the only so-called two sexes of the society. There exists a hidden sex, which we either do not know of or do not wish to know about. Where does it all begin? Home, a place of comfort, a place where one feels secure. The desire of making the child look cute makes mothers to dress up their boys in girls' attire. Unacquainted mothers hardly realize that this attire would have a long-lasting impact on the child's identity. Little did they know that they had become the victims of child sexual abuse. They unknowingly got trapped into the vicious circle of sex. They had no clue that their journey had just started. मोहल्ले में बचपन में इधर उधर कहीं चले गए, कोई परिवार तो सामने पड़ोसी थे, उसके घर सो जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेडिकल स्टोर भी है उनका, तो उन्होंने ऐसा करा कि रात को सोए तो मेरी तबीयत ख़राब हो गया। दवाई दी तो मेरे को नशा हो गया। उनने बदन में कपड़े उतार दिए, कपड़े उतार के फिर बॉडी इंजॉय करा, उसके बाद साथ में शरीर में सेक्स वगैरह करा। फिर मुझे एक दिन करा, 2 दिन करा, 2-3 दिन नशे में करा, तो फिर मुझे स्वाद सा लगने लग गया। तो फिर मेरी आदत सी बनती चली गई। With scattered thoughts, thus they enter into the state of confusion. They start questioning their identity at each stage. To be born of the wrong sex seems to be the cruelest of joke played on mankind. It's a lifetime of confusion. The soul of a woman trapped in the body of a man. Stepping into a different world which will shape their real identity. The identity of an MSM. A man who has sex with a man. Their face is their fortune, with male voices shouting. With their trademark tali. Their adaएं. Their ठुमका. Their nan matka can leave anyone fascinated. एमएसएम में ऐसे लड़के होते हैं जिन्हें कोई नहीं समझ पाता कि वो हैं क्या। एमएसएम जैसे कि उनमें लड़कियों वाली आदत होती है, वो अपने आप को क्या नाम कहते हैं, लड़की समझते हैं, पर आम लोगों की नज़र में वो एक लड़का ही होते हैं। कोती हम जैसे ही लोगों को कहते हैं। कड़े ताल वाले वो पैंट कमीज जो पहनते हैं, और जो सातवेंबाज वो होते हैं जैसे कि जिन्होंने अपना सेक्स चेंज नहीं करा रखा होता और वैसे कपड़े पहनते हैं लेडीज। Hijras refer to transgender persons who belong to the Hijra cult. Some people equate MSM, specifically the effeminate Kothis, Duranis, with Hijras. While there are some similarities among Kothis and Hijras, they cannot be viewed from the same lens. Hijras and Kothis, Duranis share certain similarities like the language they use within their network, feminine attire, and effeminate demeanor. Since the Hijra community was a visible, socially acknowledged alternate sexuality, some of the effeminate Kothis used to join the Hijra community. हिजड़ा तो एक ओरिजिनल हिजड़ा ही होता है। ये हम लोगों में अदाएं हैं बस, ये कोई हिजड़ा विजड़ा नहीं है। हम लोग ये अदाएं हैं। अब कई हम लोगों को हिजड़ा समझ लेते हैं तो वो कहते हैं छक्के जा रहे हैं, पर मैं तो मुंह में मुद्द देती हूँ उनके खड़ी होके, क्या कि मेरा मुंह मार, फिर बाद में बताइए छक्का के मर्द है। Male to male sex and display of effeminate behavior by a man is neither socially nor legally accepted in our society. We have been brought up with the conception that male to female sex is normal. So when MSM faces an identity crisis, feeling that he is abnormal,
They feel as if their body doesn't match the sex their brain feels it is. मेरे मन के अंदर शुरू से एक औरत बसी है, इसलिए मैंने अपने अंदर के आदमी को मार दिया। जब ऊपर वाले ने मेरे अंदर एक औरत डाल रखी है, तो फिर मैं मर्द बन के मेरे को क्या फायदा, औरत बन के ही रहूं। अब 2 in 1 तो मैं बन नहीं सकती। Stigma is not restricted to their social life, but extends to work as well. What an MSM wants to be, he must be. MSMs resort to different occupations because of their sexual identity. Occupations like commercial sex work, or dagar, as they call it, begging at red lights, toli badhai with hijra clients, and outreach work to educate their peers about HIV/AIDS and other issues are common to MSM. जो संस्थाएं खुली हुई आजकल हम लोगों के लिए MSM की, तो कई लोग वहाँ पे पी एजुकेटर हैं, कई आउटरीच वर्कर हैं। मैं भी तक पी एजुकेटर हूँ। 7वें होते हैं, वो टोली बधाई भी करते, खांजरा भी करते, रात को सेक्स वर्क कर लिया, खांजरा कर लिया, ये सब करते हैं। और जो पन वाले होते हैं, जो छिबरे, वो जैसे कि अपने टोली पे जाते हैं, टोली बधाई करता। जैसे किसी को नाचना नहीं आता, किसी को गाना नहीं आता, अब जैसे कि टोली पे तो नाचने गाने वालों की ज़रूरत होती है, तब वो हिजड़ा तो बन गए। अब उनके अंदर की भावनाओं ने उन्हें लड़की बना दिया, कि लड़कियाँ बना दिया। अपनी भावनाओं निकालने के लिए उन्होंने 7वें पहन लिया। वो टोली पे जा रहे तो टोली पे हिजड़ों की गालियाँ खाएँ कि अबे तुझे नाचना नहीं आता, ऐसी गंदी गंदी गाली बकते हैं। और फिर बेचारे क्या करेंगे, अब 3 कपड़े पहन लिए, सारे दुनिया में बदनाम हो गया। ये वही था ना जो पैंट कमीज में था, अब इसने कपड़े पहन लिए, अब वो उसे कोई काम पे भी नहीं रखता। तो फिर वो बेचारे क्या करेंगे, लाल बत्ती पे भीख वीख नहीं मांगते, वो लाल बत्ती मांगना होता है। वो तो जगह जगह पे वो होते हैं उनके, कि मैंने जैसे शौचालय पे हो गया, बस अड्डे हो गया, बस अड्डे के शौचालयों में, या खजूरी शौचालय पे, शास्त्री पार्क में, या झाड़ियों के आसपास में, ऐसे संबंध होते हैं MSM के। The MSM, stigmatized by his family and the society, tends to join the MSM groups, where he would meet like-minded and like-bodied people and be herself. कोती कोती आपस में एक दूसरे को अपनी दुख सुख की बातें बताती हैं, एक दूसरे से अपने वो करती है। यानी कि उन्हें अपने माँ बाप, अपने बहन भाई भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हम जैसे लड़कियों वाली अदाएँ दिखाते हैं, लड़की वाले नखून पालिश लगाना, लिपस्टिक लगाना, तो किसी के माँ बाप या किसी के बहन भाई ये चीज़ पसंद नहीं करते कि वो नखून पालिश लगाए। वो कहते हैं कि हमारी बेइज्जती होती है, तो वो उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। तो इससे वो क्या होता है, वो अपने घर से भाग जाती हैं। भाग के वो अपनी वो पहचान ढूंढती है कि हम जैसे और भी कई लोग मिलें। तो ऐसी वो इधर उधर भटकती हैं, तो अपने जैसे लोग अब पहचान मिल ही जाती है उन्हें। तो फिर वो माँ बाप अपने पसंद नहीं करती, वो हम ही लोगों को पसंद करती हैं कि जैसे कि हमारे पास ना कोई रुकावट है, ना कोई वो है, साड़ी पहनो, सूट पहनो, ये करो, वो करो, अपने पैंट कमीज भी पहन लो। They love, cry, and fight among themselves. After all, it's only this community that they are left with. They have a world of their own, and so do they have different definitions for their relationships. Masi, Chachi, Nani, they have them all in their community, with the irony that they all are males. For them, this community is a home away from home. हम अपने जो बनाए रिश्ते हैं उन्हें बताते हैं, क्योंकि वो हमारा दर्द बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। They forget everything and dance to the tunes of In the process, they develop casual relationships and get indulged with multiple sexual partners, not realizing they are at the brink of paying a heavy cost of this casualty. ऐसा होता है ना, हम लोग जो है एक आदमी भी टिकते नहीं है। MSM कम्युनिटी जितनी भी है, वो एक आदमी भी टिकती नहीं है। आज मेरा ये बॉयफ्रेंड है तो कल मेरा और कोई होगा, कल और कोई था तो परसों और कोई होगा। तो लोग समझते नहीं इन बातों को, और एक से अधिक संबंध बनाने से तो बीमारी लगने का डर रहता है। और बॉयफ्रेंड ऐसे बदलते जैसे रोज कपड़े बदलते हो। According to the National AIDS Control Program 3, MSM is a high-risk group of HIV transmission in India.
For all practical reasons, men having sex are vulnerable to HIV for couple of reasons. Going for anal sex, which as such is riskier than vaginal sex. हम अपनी गुदा में जब डलवाते हैं तो हमारी गुदा में टाइटपन होता है, वो सेक्स के लिए तो होता नहीं है, लेकिन जब हम डालते हैं तो उसमें छिल जाती है गुदा, चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी छिल जाती है। और हमारा लिंक का जो टोपा होता है वो इतना कच्चा होता है कि उसमें से कोई से भी कीटाणु प्रवेश कर सकते हैं, आदान प्रदान हो सकते हैं। अगर हम सेक्स कर रहे हैं, हमें बीमारी है नहीं है हम तो नहीं जानते, अगर उस जिसके साथ कर रहे हैं उसको है नहीं है, अगर हमारे संबंध बन रहे तो दोनों में से किसी को बीमारी तो वो लग सकती है, चाहे उसमें गुप्त रोग हो चाहे HIV। In fact, HIV was first identified in the US among gay population as gay-related infectious disease, GRIDS. But the virus has not spared many, like Manoj, Mangla. मैं भी एक HIV पॉजिटिव हूँ। Manoj is living with AIDS. Mangla is HIV positive since 3 years. हम तो इस बीमारी के अंदर, इस बीमारी में फंस ही चुके हैं, समाज ना फंसे। इस बीमारी को रोकने का ये आसान तरीका कि इससे कॉन्डम यूज करो और लोग समाज को बचाओ, इससे बीमारियों को कमी होएगी और HIV का खात्मा हो सकता है। Is homosexuality abnormal? In general, in our society, as has been studied in many countries, roughly 3% of populations has a natural tendency or preferences towards same sexes, and that is a natural phenomenon. But the lawmakers have a different take on it. Where there is still a sort of act which is called IPC 377, which criminalize anal sex practices. So, and those sort of approaches and sort of attitude from our policymakers make them more vulnerable to both to harassment as well as to HIV acquisitions. Of whatever gender is one born with, the head should be held high, and in heart, one should know who one is. Does society not require a change? जो इज्जत एक औरत को और एक मर्द को दे रखी है, वही इज्जत हम लोगों को मिलनी चाहिए। जो अधिकार सबके लिए वो हमारे लिए, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, साल में 2 साल में गवर्नमेंट को ये बात माननी पड़ेगी। लोग तो बाद में, पहले गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट अगर लिख के भेज दे पेपरों में तो समाज तो उस बात को मानेगा। Like it's quite abnormal, like it's not legalized in India as well, so I think it's quite abnormal. Really immortal and abnormal. No, it's not abnormal. It's absolutely not abnormal. नहीं जानता, पढ़ा लिखा कम है। हम जैसे गंडुओं को कोई मैंने अपनाने को राजी नहीं है। सेक्स करवाने वाले को, गुदा मैथुन करवाने वाले को कोई अपनाता नहीं है। समाज कहाँ अपनाएगा? जब आम कोई भी घर वाला नहीं अपनाएगा तो बाहर समाज तो पूछेगा ही नहीं। वो तो सीधा कहता है, कोई कहता है हलवा है, कोई कहता है गंडुआ है, कोई देखिए ये हम इसकी मैंने गांड मार रखी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। समाज में हम लोगों को कोई जगह ही नहीं देता। थे आप जमाने के बाद आए हो, मेरे सवाब के जाने के बाद आए हो। कहाँ थे आप जमाने के बाद आए